एड्रीनो-कॉर्टिकल हार्मोन्स आज का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 78 है फ्रॉम गाइटन टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी। मेरा नाम है आसिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। अच्छा, ये जो हार्मोन्स हैं ऑब्वियसली जिन ग्लैंड से निकलते हैं उनका नाम है एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। अब एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं ये दे आर प्रेजेंट ऑन द किडनीज। सो इफ दिस इज योर राइट किडनी फॉर एग्जांपल, सो इट इज प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर पोल. If this is another kidney, this is present on the superior pole of each kidney, weighing about 4 grams. So it looks like a very small gland but very very important. And each one of them, so there are two in number, so there are 2 adrenal glands lying at the superior poles of each kidney. और हर ग्लैंड जो है इट इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जस्ट लाइक द किडनी इटसेल्फ के जो आउटर पोर्शन किडनी का है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, इसी तरह ग्लैंड में भी ऐसे ही है. So if you look at the diagram here, that's a cross section. So if you see there is, so इस bit को लेकर के बड़ा करके यहाँ दिखाया है. So the outer portion is the cortex and the inner portion is the medulla. और medulla में यहाँ इन्होंने specifically ये जो blue region है इसमें लिख दिया है catecholamines, because that's the job of catecholamines. आज का हमारा टॉपिक एड्रीनो-कॉर्टिकल हार्मोन्स है. So we'll be talking about कि कॉर्टेक्स में से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, और ये जो कॉर्टेक्स है इसके फिर फर्दर different zones हैं. The outermost zone is known as zona glomerulosa. Then the intermediate one is called zona fasciculata, and then the innermost जो medulla के बिल्कुल करीब है लेकिन cortex का last zone है, इसे कहते हैं zona reticularis. और हर एक में से एक particular चीज निकल रही है. We'll talk about that. So for example, glomerulosa में से जो important आपने chemical याद रखना है, that is aldosterone. And fasciculata or reticularis में से cortisol and androgen. So that's a very very important diagram, and you must go through the diagram in order to understand the overall picture कि cortex में से क्या निकल रहा है, medulla में से क्या निकल रहा है. So the glands, each of them is divided into an adrenal medulla, inner portion, and adrenal cortex. Medulla is the central 20% of the gland, and it is responsible for secretion of epinephrine and norepinephrine. Together इनके लिए हमने क्या word यहाँ पे use किया था? Catecholamines. So that is something that we use, okay? Then, and that is in response to sympathetic stimulation. We know this already from our sympathetic system lectures. In turn, these hormones cause almost the same effects as direct stimulation of the sympathetic nervous system. So they are kind of sympathetic like acting hormones. Cortex इस चैप्टर में हमें बात करनी है. It secretes entirely different group of hormones and they are collectively known as corticosteroids. इन सबको मिला के हम ये नाम देते हैं. These hormones are all synthesized from steroid, so it is all made up from the cholesterol. Very important point. And they all have similar chemical formula, more or less similar chemical formula. Exactly formula आपको सारे याद नहीं रखने हैं, but मोटी-मोटी बात जो बताता जाऊँ. However, there are slight differences in the molecular structure, and this is what gives them, different very important features. So they're all different from each other. Obviously aldosterone has a different job, cortisol has a different job, and there are other metabolites as well जो हमें इस पूरे pathway में पढ़ने हैं. So ये picture must know picture है, okay? There is cortex, there is medulla. cortex के फिर 3 zones हैं, हर zone में से अलग चीज निकल रही है, medulla में से अलग कोई चीज निकल रही है, okay? Now corticosteroid, ये word मैंने आपको बताया, it is used for all the hormones which are actually released from the adrenal cortex. So adrenal cortex से जो hormones निकलते हैं they are collectively called corticosteroids. और आपको 3 एटलीस्ट नाम बिल्कुल क्लैरिटी से पता होने चाहिए कि corticosteroid की एक कैटेगरी है, ये mineralocorticoids. So we'll talk about mineralocorticoids. We'll also talk about glucocorticoids and androgens, okay? So these are all collectively known as corticosteroids because ये सारे mineralocorticoid, glucocorticoid, androgen ये सब निकलते हैं adrenal gland के cortex यानी outer region से, ठीक है. Now, 2 main types of adrenocortical hormones are mineralocorticoid and glucocorticoid जो यहाँ लिखे हुए हैं, and they are both secreted obviously from the cortex because ये हमारा topic है. In addition to these hormones, there is a third one which is known as androgenic hormone, and this is why androgen is written here. तो ये 3 categories हैं, ये 2 main categories हैं, and this is androgen. Okay, they are normally of only slight importance. The androgens की बात हो रही है, although in certain abnormalities, the adrenal cortices extreme quantities can be secreted. जो obviously that is a pathogenic condition हम discuss करेंगे. Okay, mineralocorticoid gained its name because they especially affect the electrolyte mineral इलेक्ट्रोलाइट. सो इनका बेसिक काम सोडियम पोटेशियम इन चीज़ों पर है, सोडियम और पोटेशियम का रेगुलेशन और वाटर बैलेंसेस, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड. और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसका नाम ऐसे पड़ गया बिकॉज इट इज वेरी मच मोर रेलेवेंट टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, देयरफॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ओके, दे हैव एडिशनल
effects on protein and fat metabolism, but चूंकि ग्लूकोज का वेल स्टडीड है, ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड है, नाम ही ये पड़ गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. मोर देन 30 स्टेरॉइड्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो ये जो कॉर्टेक्स का चुन्ना मुन्ना सा रीजन है, इसमें से 30 के करीब डिफरेंट हार्मोन्स कह लें या स्टेरॉइड्स कह लें आइडेंटिफाई हुए हैं. बट वो सारे के सारे फंक्शनल लेवल पे इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज वो या तो इंटरमीडिएट्स हैं या मेटाबॉलिक पाथवे में बनने वाले केमिकल्स हैं. सो ऑल ऑफ देम आर नॉट, बट टू हैव एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज उन दो का कोई ना कोई एंडोक्राइन रोल हमें पता है और उनकी कमी या ज्यादती से होने वाली डिजीजेस हमको पता है. और वो कौन से हैं? दे आर एल्डोस्टेरॉन which is principal mineralocorticoid and the other one is cortisol which is glucocorticoid. So बात देखें ये है कि एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स जो हैं इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड. दो तरह के कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने याद रखने हैं, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड और दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ऑल्दो एंड्रोजन भी बनते हैं बट ये माइन्यूट अमाउंट है. ये दो मेन है. मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मेन एग्जाम्पल जो आपने याद रखनी है वो है कॉर्टिसोल. तो ये आपको इस तरह से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए फ्रॉम द वेरी आउटसेट of the chapter कि when we say aldosterone we are talking about mineralocorticoid, when we talk about cortisol we are talking about glucocorticoid. ठीक है, अब हम एक एक करके इस सब्जेक्ट में डीप डाइव करेंगे कि ये बनते किस तरह से हैं, इनके फंक्शन क्या हैं. सो द फर्स्ट हेडिंग वी वांट टू डिस्कस नाउ इज सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स. एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ये कितनी तरह के होते हैं? एक्चुअली 3 तरह के, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजेंस. मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एग्जांपल क्या है? एल्डोस्टेरॉन. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एग्जांपल क्या है? कॉर्टिसोल. ठीक है. नाउ एड्रेनल कॉर्टेक्स हैज 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स. मैंने आपको यहां पे ये 3 लेयर्स दिखाई ना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना fasciculata एंड जोना रेटिकुलरिस. तो ये 3 लेयर्स हैं और जो जोना ग्लोमेरुलोसा है विच इज द आउटर मोस्ट लेयर जो कैप्सूल के बिल्कुल नीचे है, जस्ट अंडरनीथ द कैप्सूल, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15% ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स. दीज सेल्स आर द only ones in adrenal gland capable of secreting significant amount of aldosterone. So the job of glomerulosa layer is to produce the mineralocorticoid aldosterone. ठीक है, क्योंकि इनमें एक एंजाइम है, अभी हम देखेंगे, which is known as aldosterone synthase. ये बाकी लेयर्स में नहीं है. And this enzyme obviously इसका नाम है aldosterone synthase, so it is obviously necessary. It's the mandatory thing for production of aldosterone. The secretion from these cells, which is aldosterone, is controlled mainly by extracellular fluid and concentration of angiotensin 2 and potassium. So if अब देखें क्या बात हो रही है. बात ये हो रही है कि हम बात कर रहे हैं एल्डोस्टेरॉन की और एल्डोस्टेरॉन बन रहा है जोना ग्लोमेरुलोसा में. इसका काम क्या है? मैंने आपको ऊपर बताया था, इट्स अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड. इसका जॉब है टू कंट्रोल सोडियम, पोटेशियम, वाटर बैलेंसेस इन द बॉडी. तो यही वो चीजें हैं जो इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल भी करती हैं. सो इफ यू हैव लाइक डिस्टर्बेंसेस इन सोडियम, पोटेशियम, वाटर बैलेंसेस इन द बॉडी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन और ओवरहाइड्रेशन, देन द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम and this compound angiotensin 2 is a potent control mechanism for aldosterone. अभी हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, so don't worry. Then there is the second layer which is called zona fasciculata. So zona glomerulosa, outer layer, then zona fasciculata. अब ये जो fasciculata है, that's the middle layer and is the widest zone. About 75% composition यही है. And the job is to produce cortisol and corticosteroid as well as a small amount of androgen. So ये आपको याद रखना है. And also estrogen. अक्सर बच्चे कहते हैं सर estrogen तो सिर्फ फीमेल में नहीं बनता, भाई आप पे भी बनता है अगर आप मेल हैं. So the secretion of these cells is controlled in large by hypothalamic pituitary axis via the ACTH. ये इंपॉर्टेंट है. देखो आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में ना हर एक का कंट्रोल बता रहे हैं. सो glomerulosa is under the control of angiotensin 2 and fasciculata is under the control of ACTH. The primary control is ACTH from the pituitary axis. Then there is the third layer which is the innermost layer. It is known as zona reticularis and it secretes androgen और उस androgen का नाम है DHEA, hydro एपीएंड्रोस्टेरॉन, जिसको हम DHEA शॉर्ट में कहते हैं, एंड एंड्रोस्टेनडायोन एंड ऑल्सो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड सम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फेज वाइज इनकी कॉम्पोजिशन का पता होना कि कौन सी चीज क्या रिलीज करती है. दैट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इनकी भी कंट्रोल जो सिक्रीशन का है दैट इज अंडर ACTH बाय इन लार्ज. Okay, and as it is also regulates secretion of these cells, although other factors such as cortical androgen stimulating hormone release pituitary may be involved, but ACTH you must remember. Aldosterone
यानी mineralocorticoid and cortisol यानी glucocorticoid, they are regulated by independent mechanisms. So they, ऐसा नहीं है कि ACTH आएगा और सारों की सिक्रीशन रिलीज कर देगा, ऐसा भी नहीं है कि सोडियम पोटेशियम सारों की सिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन का अपना मैकेनिज्म है, कॉर्टिसोल का अपना मैकेनिज्म है, इनके कंट्रोल सिस्टम्स बिल्कुल अलग अलग हैं. Okay, so that's a very very important point to understand. अब ये जो blue boxes हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि they are purely irrelevant. We need to go through them very quickly, but actually this will be discussed more in biochemistry कि किस तरह से ये hormones बनते हैं. So basically they are derived from steroid cholesterol. They are all steroid hormones. जितनी भी अभी हमने बात की है, aldosterone, cortisol, and they are developed from cholesterol. All human steroid hormones, including those produced by the adrenal cortex, जिनका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, they are synthesized from cholesterol. ठीक हो गया. Although the cells of the adrenal cortex can synthesize de novo small amounts of cholesterol, 80% of the cholesterol for these hormonal synthesis is provided by the LDLs in the circulating plasma, जो obviously आप डाइट से ले रहे होते हैं. These LDLs are used for synthesis of your very important hormones. फिर इनका transport of the cholesterol into the adrenal cell is regulated by the feedback mechanisms that can markedly alter the amount available for steroid synthesis. Well, that's more sort of biochemistry stuff. We'll talk about this when we discuss biochemistry lectures for steroid metabolism in detail. Okay, तो pathway में भी discuss नहीं कर रहा. Superficially आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, but to be honest, I'm not gonna talk about them. ये वाला अब जो बिट आ रहा है, that is important. आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के डिफरेंट फ्लेवर्स आपकी बॉडी में क्या क्या हैं और मिनरलोकॉर्टिकॉइड के क्या क्या हैं. अब तक जो हमने बात की, तो मैंने आपको बताया कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसमें हमेशा आपको जो नाम याद रहना चाहिए वो एल्डोस्टेरोन है, बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ ऑल द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यू हैव. अब इसका ये मतलब नहीं है कि और किसी भी चीज की मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती ही नहीं है. सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी का मतलब क्या है? सोडियम पोटेशियम वाटर बैलेंसेस. तो 90% एल्डोस्टेरोन ये काम कर रहा है, इसीलिए जब कभी मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नाम आता है आपके जहन में एल्डोस्टेरोन का नाम आना चाहिए. लेकिन डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था ना, cortisol is a glucocorticoid, so they are not primarily mineralocorticoid, but they have mineralocorticoid activity, यानी they can also work on these receptors जिस पे ये aldosterone काम करता है, but obviously with less potency. So ये सारे मिलके भी इतनी बड़ी 90% यार aldosterone है. ठीक है. इसी तरह glucocorticoid में 95% of all the glucocorticoid activity in your body is only by this giant molecule, so that's the superman glucocorticoid cortisol. बाकी ये सब जो है छोटे मोटे molecule बेचारे मिथाइलप्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, ये भी कुछ ना कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी कर सकते हैं. लेकिन पॉइंट क्या है, इनमें से कुछ जो है ना वो तो मैं कहता हूँ बहुत फाड़ू हैं. उसकी वजह ये है कि दे कैन बी यूज्ड एज ड्रग एज वेल. सो डेक्सामेथासोन फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस डेक्सामेथासोन. दिस इज सिंथेटिक, यानी आर्टिफिशियली आप इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, एंड इसकी एक्टिविटी जरा सुनो, 30 times as potent as cortisol. Oh my god. So इसकी एक्टिविटी तो बूम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, लेकिन ये बॉडी में नहीं बन रहा है, ये आप सिंथेटिक ले रहे हैं. इसी तरह मिथाइल प्रेडनिसोन है, सिंथेटिक है, 5 times as potent. Prednisone is also synthetic, 4 times as potent. Cortisone is almost as potent as cortisol. So this is an important one to remember. यानी cortisol का भाई कौन है या बहन कौन है? cortisone, same activity. Corticosterone 4% of the total glucose, very small, it's less potent. So ये बड़ा important few lines to remember कि mineralocorticoid बोले तो कौन सा सबसे potent और बाकियों का क्या हिसाब किताब है. And अगर हम बात करें glucocorticoids की तो कौन सा सबसे potent, उसके बराबर कौन, और synthetic में उससे ज्यादा कौन, right? That was an important bit. And as a teacher, as a facilitator, my job is to tell you the most important things. Okay? अच्छा, अब adrenocortical hormones जो हैं, they are bound to the plasma protein. So once they are secreted from the adrenal cortex into the plasma, they are bound to the proteins, and that's important for so many other proteins so that they can be carried. Approximately 90 to 95% of the cortisol in the plasma binds to the plasma proteins, especially a globulin known as the cortisol binding globulin, या उसका नाम है ट्रांसकॉर्टिन. अक्सर लोगों को ये नाम नहीं पता होता, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो that's all for these blue boxes for now. ठीक है. अच्छा जी, ये क्या है? ये अभी ऊपर हमने जो टेक्स्ट डिस्कस किया था ना कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी कितनी है. सो स्टैंडर्ड अगर हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, पर्टिकुलरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो कॉर्टिसोल इज कंसीडर्ड स्टैंडर्ड और इसकी एक्टिविटी मानी जाती है एज 1.
1 मीन्स द बेसिक बेसलाइन। अब इससे ज्यादा 30 टाइम्स यानी कॉर्टिसोल से 30 टाइम्स ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है डेक्सामेथासोन की, यही बात मैंने भी बताई थी। 4 टाइम्स प्रेडनिसोन की, 5 टाइम्स मिथाइल प्रेडनिसोन की, और बाकी सबकी कम है, बाकी सबकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है। इवन एल्डोस्टेरोन की भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है, बट 0.3 यानी आप कह लें कि 70% लेस देन दैट ऑफ द कॉर्टिसोल एक्टिविटी। और अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी की बात करें, सो एल्डोस्टेरोन इज कंसिडर्ड एज अगर हम इसी से स्टार्ट करें कॉर्टिसोल से, इसकी हम एक्टिविटी को 1 लें, तो जरा देखें एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी कितने टाइम्स हाई है कॉर्टिसोल से, 3000 टाइम्स हाई, लेकिन किस कैपेसिटी में? मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी की कैपेसिटी में। सो अगर हम ये कहते हैं ना कि इस एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी को हम 1 ले रहे हैं, तो इट वुड हैव गॉन लाइक 0.0000 समथिंग। सो कॉर्टिसोल की, मतलब इस ग्राफ को, चार्ट को पढ़ना कैसे है कि कॉर्टिसोल की ठीक ठाक ग्लूकोकॉर्ड एक्टिविटी तो है, लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी एल्डोस्टेरोन के मुकाबले में बहुत ही कम है, बिकॉज एल्डोस्टेरोन इज 3000 टाइम्स मोर पोटेंट एज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एज कंपेयर टू कॉर्टिसोल, and aldosterone is 0.3 times as potent as cortisol as glucocorticoid। तो ये मेरे जुमले गौर से सुनो, समझो, समझ में आ रही है बात? Right, now let's move on to the next heading, which is the functions of mineralocorticoid। So अब हमने फोकस किया है सिर्फ पहली सीक्रेशन पे। मैंने आपको बार बार ये बात बताई कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या क्या निकलता है भाई। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है एंड्रोजेंस। ठीक हो गया। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बट द सुपर हीरो इज द एल्डोस्टेरोन। इसी तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बट द सुपर हीरो इन द बॉडी इज द कॉर्टिसोल। Okay, so we'll talk about now aldosterone. So how the aldosterone functions, क्या काम है उसका? Now mineralocorticoid deficiency causes severe renal sodium chloride wasting and hyperkalemia। होता ये है, जब कभी किसी चीज का काम समझना हो, पढ़ना हो, तो उसका आसान तरीका ये है कि ये देखें कि अगर वो नहीं होगा तो बॉडी में क्या होगा, और अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो बॉडी में क्या होगा। ऐसी डिजीजेस अवेलेबल हैं, ऐसी डिजीजेस हैं, है ना। सो total loss of adrenocortical secretion may cause death within 3 to 14 days। That's very critical। यानी अगर mineralocorticoid नहीं है, so this is a life-saving hormone। So if this hormone is not around, the person may die in just 2 weeks, okay? Because the person is not able to, modulate the salt-water balances। और यहाँ आगे जुमला लिखा भी है कि unless the person receives extensive salt therapy or injection with mineralocorticoid, so obviously left untreated, mineralocorticoid अगर बॉडी में नहीं होंगे, the person will die। Without mineralocorticoid, potassium ion concentration of extracellular fluid rises markedly। यानी एक काम तो आपको पता लग गया कि एल्डोस्टेरोन का एक काम है बॉडी से पोटेशियम को बाहर निकालना। ठीक हो गया। सोडियम क्लोराइड आर रैपिडली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये बात हो रही है जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं होंगे तो सोडियम क्लोराइड लूज होगा, यानी उल्टा करो इसको, एल्डोस्टेरोन का काम हो गया सोडियम को बॉडी में रखना। सो इट एब्जॉर्ब्स सोडियम एंड रिलीजेस पोटेशियम। दैट्स द जॉब ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एंड द टोटल extracellular fluid volume and the blood volume become greatly reduced, so that is another function। So अब overall अगर मैं summarize करूं कि क्या काम है एल्डोस्टेरोन का, so it reabsorbs sodium, it reabsorbs water because water sodium के साथ ही reabsorb होता है, and it excretes potassium, so that's the job। ठीक है। Diminished cardiac output soon develops and the person therefore goes into a shock-like state and the person dies। So that's the job to sodium reabsorption, water reabsorption, potassium excretion। That's the job of aldosterone। ठीक है जी। And it is the major mineralocorticoid from the kidney, or not the kidney, from the suprarenal cortex। Okay, in humans aldosterone exerts nearly 90% of the mineralocorticoid activity in the body, but cortisol can also perform this action। यानी जो सोडियम की reabsorption और पोटेशियम की एक्सक्रीशन है, cortisol can also do this, but to a lesser extent obviously as compared to the aldosterone। The mineralocorticoid activity of the aldosterone is about 3000 times as compared to the cortisol। ये भी मैंने ऊपर आपको यहाँ दिखाया भी था, 3000 times as compared to the cortisol। If cortisol is 1, then aldosterone is 3000 mineralocorticoid activity। Okay, cortisol can bind to the mineralocorticoid receptor with very high affinity। However, the renal epithelial cells express 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase, which is in short known as 11 beta HSD2,
which has the action that prevent cortisol from activating the mineralocorticoid receptor. इसीलिए cortisol की जो activity है वो कम है as compared to aldosterone. One action of this 11 beta HSG2 is to convert cortisol into cortisone, which does not avidly bind to the receptor. तो basically ये जो cortisol है ये जाके bind तो करता है receptors पर, लेकिन फिर inactivate हो जाता है. इस वजह से it cannot function as potently as the aldosterone. And there is evidence that 11 beta HSG2 may have effects on the intracellular oxidation reduction states, जो कि एक्टिवेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर. तो ये सारे रीजंस बता दें कि क्यों कॉर्टिसोल बहुत अच्छा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन करने वाला हार्मोन नहीं है. Okay. Now, in patients with genetic deficiency of 11 beta HSG2, cortisol may have substantial mineralocorticoid activity. Beautiful line. अब ये एक रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर में एक चीज एक्सप्रेस हो रही है which is 11 beta HSG2, और ये क्या कर रहा है कि ये कॉर्टिसोल को ये बाइंड तो कर रहा है कॉर्टिसोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे, लेकिन ये कॉर्टिसोल को इनएक्टिव करता है. अब जब ये खुद ही बेचारा इनएफेक्टिव होगा, म्यूटेटेड होगा, तो कॉर्टिसोल तो बल्ले बल्ले. अब कॉर्टिसोल का मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन बूम बढ़ गया. ठीक है, क्योंकि उसको इनएक्टिवेट करने वाला कोई नहीं है. एंड दैट कंडीशन हैज अ नेम. दिस इज नोन एज एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम. तो इसमें एक्चुअली मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ नहीं होता, इसमें कॉर्टिसोल भी बढ़ा हुआ नहीं होता, लेकिन कॉर्टिसोल एज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा काम कर रहा होता है क्योंकि 11 बीटा HSG2 काम नहीं कर रहा होता. मेडिसिन में लोग डायरेक्टली पढ़ाते हैं AME घंटा नहीं समझ आते AME, क्योंकि फिजियोलॉजी नहीं सही से याद रखी हुई होती. तो भाई फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो मेडिसिन समझ में आएगी, वरना टाई फिश. ये बात सिंपल है, याद रखो इस बात को. ठीक है, ओके. सो ये जो AME है एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, इसमें बेसिकली आपको याद रखना है कि 11 beta HSG2 is not working. Ingestion of large amount of licorice, which contains glyceritic acid, may also cause AME because this licorice has the ability to block this enzyme. So या तो genetic mutation हो या फिर ये किसी और वजह से block हो जाए, जैसे कि use of licorice, तो the person get excessive mineralocorticoid action, जिसका मतलब ये बहुत सारा सोडियम एब्जॉर्ब होगा, बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब होगा, बहुत सारा पोटेशियम निकलेगा. Hypokalemia may be excessive volume effects in the body as well. Okay. Now the renal and circulatory effects of aldosterone. So let's talk about कि इनके effects actually हैं क्या. तो पहला जो इफेक्ट आपने याद रखना है, जो कि प्राइमरी इफेक्ट हम बार बार डिस्कस कर रहे होते हैं, वो है एल्डोस्टेरोन का ये कि इट इंक्रीजेस द रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रीट्स द पोटेशियम. तो ये बात हमने कई दफा अब तक कर ली है ऑलरेडी कि किडनीज में व्हेन एल्डोस्टेरोन फंक्शंस, तो इसका काम है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड एक्चुअली पोटेशियम सिक्रीशन. ठीक है, दैट्स व्हाट द जॉब इज. एंड एज डिस्कस ऑल्सो हमने रीनल फिजियोलॉजी में भी ये चीज डिस्कस की है कि एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन of sodium and simultaneously increases the secretion of potassium by the renal tubular epithelial cells, particularly the principal cells in the collecting tubule. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट ऑफ द किडनी और नेफ्रॉन is actually dealing with the action of the aldosterone. Therefore, aldosterone causes sodium to be conserved in the body क्योंकि reabsorption कर रहा है, and potassium to be secreted out of the body. A high concentration of aldosterone in the plasma can transiently decrease the sodium loss into the urine because ज़्यादा aldosterone होगा तो ज़्यादा sodium reabsorb होगा body में. Okay. Conversely, if there is total lack of aldosterone, है ही नहीं aldosterone, तो sodium reabsorb नहीं हो रहा अब, so there will be transient loss of sodium into the urine. So all will make sense if you understand the basic concept कि it will reabsorb sodium and secrete potassium. Second जो जॉब आपको याद रखना है aldosterone का, it increases extracellular fluid volume, and that makes sense because if you reabsorb sodium, along with sodium comes water. So ये osmotic stuff है जो आपको याद रखना है, और जब जाहिर है सोडियम आएगा, ज़्यादा पानी आएगा, तो ब्लड प्रेशर पे थोड़ा सा इफेक्ट ये होगा कि ब्लड प्रेशर विल बी स्लाइटली इंक्रीज्ड. लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्या हो गया आप मुझे बताओ कि इफ द किडनीज आर एब्जॉर्बिंग मोर एंड मोर सोडियम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम. आपको ऐसे लग रहा है अगर कि ये चूंकि सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, यू आर रॉन्ग, यू आर थिंकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज द पॉइंट इज कि
सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, साथ साथ पानी भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो टोनिसिटी है वो ज़्यादा फर्क नहीं आता उसमें, तो इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन है या ऑस्मोलैरिटी है सोडियम की उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता. इट इज़ ओनली स्मॉल इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन. बिकॉज अगर सिर्फ सोडियम आ रहा होता ना, पानी नहीं आ रहा होता, तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हम कहते हैं कि बढ़ गई है, लेकिन सोडियम भी आ रहा है, साथ वाटर भी आ रहा है, सो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट उतना ही रहता है. ओके अगर एल्डोस्टेरोन नहीं होगा बॉडी में, देन द पर्सन विल हैव हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि अब सोडियम रीएब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी खत्म. ऑल्दो एल्डोस्टेरोन इज अ पोटेंट इफेक्ट टू, अब ये पूरा आप खुद पढ़ लो भाई, ये मैंने आपको समझा दिया, या चाहते हो मैं पढ़ा दूं? असल में फिर स्टूडेंट मुझे अलग से मैसेज करके लिखते हैं कि सर आप हर लाइन पढ़ाई दिया करो तो अच्छा है. चलो पढ़ लेते हैं. ऑल्दो एल्डोस्टेरोन has a potent effect to decrease the rate of sodium excretion. The concentration of sodium in the extracellular fluid rises only a few milliequivalents. Again, reason मैंने आपको बताया क्योंकि साथ साथ पानी reabsorb हो रहा है. Now, the reason for this is that when sodium is reabsorbed by the tubule, simultaneous osmotic absorption of the water also happens. ठीक हो गई बात, समझ में आ गई? Now, even though aldosterone is one of the body's most powerful sodium-retaining hormone, only transient sodium retention occur when excess amount of aldosterone are secreted. Aldosterone mediated increase in the ECF volume lasting more than 1 to 2 days also lead to an increase in the arterial pressure. ज़ाहिर है ज़्यादा वॉल्यूम होगा पूरी बॉडी के सिस्टम में, so there will be more arterial pressure. और इस arterial pressure की वजह से there will be kidney में net uresis का इफेक्ट हमने पढ़ा है renal physiology में, और net uresis की वजह से वो वॉल्यूम लूज होगा बॉडी से. So ये सारा होम्योस्टैटिक सिस्टम है कि एल्डोस्टेरोन की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर net uresis की वजह से वॉल्यूम दोबारा नॉर्मल की तरफ जा रहा है. And this return to normal sodium and water excretion by the kidney as a result of pressure net uresis is known as aldosterone escape. यानी अगर बॉडी में एल्डोस्टेरोन ज्यादा काम करना शुरू कर देगा तो सोडियम एब्जॉर्ब होगा, ये सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो वाटर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ बॉडी के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा और किडनी में प्रेशर नेट यूरेसिस होगा, सोडियम भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा. तो एल्डोस्टेरोन जो काम कर रहा था उसका ऑपोजिट काम शुरू हो गया है. दैट्स व्हाट इज नोन एज एल्डोस्टेरोन एस्केप. Okay, therefore the rate of gain of sodium and water by the body is actually zero. So ये मजे की चीज है, एक तरफ से आप एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हो, दूसरी तरफ नेट यूरेसिस के जरिए उसको आप बॉडी से बाहर भी निकाल रहे हो. समझ रहे हैं आप बात? So that's how it works. In contrast, अगर सीवियर एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी है, it will cause substantial reduction in the plasma sodium because hyponatremia develop होगा और आप अब सोडियम reabsorb नहीं कर रहे because आपका एल्डोस्टेरोन लेवल कम है. ठीक है. द रीनल सोडियम वेस्टिंग कॉजेज रिडक्शन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. अब आपका वॉल्यूम हाइपोवॉल्यूमिया की तरफ चला गया, वॉल्यूम कम हो गया और कार्डियक आउटपुट कम होगा, ये सब चीजें कम होगी. एंड नाउ यू स्टार्ट सिक्रेटिंग एंटी डायोरेटिक हार्मोन. अब जो एंटी डायोरेटिक हार्मोन है ये जब किडनी पे काम करता है तो ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है, ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब नहीं करवाता. इसकी वजह से फिर हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होता है. सो अगर कंकरेंट सोडियम भी आ रहा हो और वाटर भी आ रहा हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम डज नॉट चेंज, बट इफ ओनली वाटर एंटर्स देन द सोडियम कॉन्सेंट्रेशन फॉल्स डाउन. ओके, सो रीनल फिजियोलॉजी भी इसके साथ मिला के पढ़ो तो मजा आएगा. अगला फंक्शन एल्डोस्टेरोन का क्या है? एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन कैन कॉज हाइपोकैलेमिया. मेक सेंस. और फिर हाइपोकैलेमिया के जो भी इफेक्ट्स हैं वो सब, यानी कि मसल वीकनेस हो सकती है, कार्डियक टॉक्सिसिटी. बिकॉज बार बार मैं बता रहा हूँ एल्डोस्टेरोन का काम क्या है भाई? सोडियम एब्जॉर्ब करना, पोटेशियम निकालना. जब पोटेशियम निकलेगा एक्सेसिव तो हाइपोकैलेमिया तो होगा ना बॉडी में. एक्सेस एल्डोस्टेरोन डज नॉट कॉजेज लॉस ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इनटू द यूरिन बट आल्सो स्टिमुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द ECF into most of the cells of the body. So overall effect ये होता है कि आपका plasma concentration of potassium goes very very down and that is what we call hypokalemia and it has effects. मतलब अगर मसल पे बात करें तो there will be muscle weakness और muscle contraction का मसला होगा and there can be cardiac abnormalities because for cardiac normal functioning potassium is very important. ओके अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन जो आपने याद रखना है एल्डोस्टेरोन. तो अब तक हमने क्या क्या बात की? एल्डोस्टेरोन के क्या क्या काम है? एल्डोस्टेरोन का पहला काम सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम बढ़ाना. देन वी टॉक्ड अबाउट कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एज सच चेंज नहीं होती. प्रेशर नेट यूरेसिस का इफेक्ट हमने पढ़ा, हाइपोकैलेमिया करवाता है ये. अनदर जॉब इज टू कॉज अल्कलोसिस बिकॉज इट इंक्रीजेज हाइड्रोजन लॉस फ्रॉम द किडनी. सो एल्डोस्टेरोन नॉट ओनली कॉजेज पोटेशियम टू बी सीक्रेटेड बट उसके साथ साथ ऑल्सो प्रिंसिपल सेल्स में इट लूजेज हाइड्रोजन आयन एंड इफ यू लूज हाइड्रोजन आयन then you get alkalosis in the body because alkalosis को बैलेंस करने के लिए there was an acid hydrogen ion, अब वो लूज कर रहे हैं आप, so you get alkalosis. All should make sense to you. Okay, ये सिर्फ तब होगा जब आपने कॉन्सेप्ट के साथ चीजें पढ़ी हुई हैं. Aldosterone stimulates sodium and potassium transport in sweat gland
salivary gland as well as intestinal epithelial cell. अब ये सुनिए, aldosterone has almost the same effect on sweat gland and salivary gland as it has on the renal tubule. That's important. Both these glands यानी sweat gland और salivary gland फॉर्म अ प्राइमरी सिक्रीशन, है ना. स्वेट ग्लैंड से स्वेट बनता है आपका पसीना, और सलाइवरी ग्लैंड से आपकी सलाइवा बनती है जिसे थूक कहते हैं, है ना. बट मच ऑफ द सोडियम क्लोराइड अपॉन पासिंग थ्रू द एक्सक्रीटरी डक्ट इज रीएब्सॉर्ब. सो सोडियम रीएब्सॉर्प्शन. सो अगर कोई ग्लैंड है उसकी ये डक्ट है, सो सोडियम की रीएब्सॉर्प्शन और पोटेशियम की सिक्रीशन. यही तो हो रहा था किडनी में भी, यहां पर भी यही होता है. एल्डोस्टेरोन ग्रेटली इंक्रीजेस द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड इंक्रीजेस द सीक्रीशन ऑफ पोटेशियम बाय द डक्ट्स. तो जो लिक्विड आ रहा है उसके अंदर हाई पोटेशियम कंटेंट है, चाहे वो स्वेट है या वो सैलिवरी ग्लैंड्स है. द इफेक्ट ऑन द स्वेट ग्लैंड इज important to conserve the body salt in hot environments, and the effect on salivary gland is necessary to conserve salt. Basically aldosterone को अगर मैं define करूँ ना, तो it is actually working to conserve salt and water in the body, ताकि salt reabsorb हो body में ही रहे. ठीक है. Aldosterone also greatly enhances sodium absorption by the intestine. So हर जगह से sodium absorb करवा लो, बस ये इसका काम है. ठीक हो गया जी. नाउ सम सेलुलर मैकेनिज्म्स और किस तरह से ये काम करता है. ऑल्दो फॉर मेनी इयर्स वी हैव नोन द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड ऑन द बॉडी, द मोलेकुलर मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन रिसेंटली पता लगे हैं. However, the cellular sequence of events that lead to increased sodium reabsorption seem to unfold as follows. First, because of its lipid solubility, यहाँ पे its का क्या मतलब है, एल्डोस्टेरोन. तो एल्डोस्टेरोन इज लिपिड सॉल्युबल, इट गेट्स इनटू द सेल. सेकेंडली, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ट्यूब्यूलर सेल ऑफ द किडनी या स्वेट ग्लैंड या जिस भी ग्लैंड पे ये काम करेगा, एल्डोस्टेरोन बेसिकली कंबाइंस विद अ रिसेप्टर व्हिच इज नोन एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रोटीन, MRP, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. और ये कंबाइन होकर देन इट starts its job. So although renal tubular epithelial cell जो mineralocorticoid receptor है also have a high affinity for cortisol, यानी इस पे aldosterone भी बाइंड हो जाएगा इसी एक रिसेप्टर पर, और इसी रिसेप्टर पर cortisol भी बाइंड होगा. लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 11 बीटा HSG2 जो है वो cortisol को कन्वर्ट कर देता है cortisone में. तो फिर cortisol अपना काम इस MR रिसेप्टर पर नहीं कर पाता. इसीलिए कॉर्टिसोल की मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी एल्डोस्टेरोन के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन इस एंजाइम से डैमेज नहीं होता. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस कि ये जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, यानी एक तरफ एल्डोस्टेरोन है और उसके साथ ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इट डिफ्यूजेस इनटू द न्यूक्लियस. अब ये न्यूक्लियस में घुस जाता है, वेयर इट अंडरगोज फर्दर ऑल्टरेशन, फाइनली इंड्यूसिंग वन और मोर स्पेसिफिक पोर्शंस ऑफ द DNA टू फॉर्म स्पेसिफिक मैसेंजर RNAs रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ट्रांसपोर्ट. अल्टीमेटली ये जो सेल है इसमें जो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट है, ये एक प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन की एक्सप्रेशन इंक्रीज होती है इनसाइड द न्यूक्लियस. तो ये सारा गेम है इसका. ठीक है. फर्दर आई विश इन्होंने एक डायग्राम दी होती है यार, अच्छी सी नहीं दी हुई. Oh my God, ये क्या है? Is this the diagram? Yes. So that's a cell. ये एल्डोस्टेरोन है, ये लिपिड सॉल्युबल है तो सेल के अंदर चला गया. ये रिसेप्टर है, देखो इसके साथ ये ग्रीन वाला ऐसे आके बाइंड हो गया, और ये जो कॉम्प्लेक्स है अब ये न्यूक्लियस में चला गया. इस न्यूक्लियस ने मैसेंजर RNA बना, DNA एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को चेंज किया, और ये मैसेंजर RNA अब जाकर के रिसेप्टर बन के प्रोटीन पे जाके यूं रिसेप्टर मेम्ब्रेन्स पे जाके लग गए, और अब यहाँ से सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम जाना. तो ये जो रिसेप्टर्स बने हैं ये प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स किससे कोड हुए हैं? मैसेंजर RNA से. किसने कोड करवाया? इन कॉम्प्लेक्सेस ने. ये कॉम्प्लेक्स क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर और एल्डोस्टेरोन. सो एल्डोस्टेरोन इन रिसेप्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब हो और ज्यादा से ज्यादा सोडियम बॉडी पोटेशियम बॉडी से निकले. ओके, राइट. फोर्थ, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस कि मैसेंजर RNA डिफ्यूजेस बैक इनटू द साइटोप्लाज्म. ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको कि ये रिसेप्टर्स बनते हैं और सेल मेम्ब्रेन पर चले जाते हैं. नाउ पॉसिबल नॉन जीनोमिक एक्शंस, तो ये तो जो हमने बात की दीज आर कॉल्ड द जीनोमिक एक्शंस, क्योंकि ये बॉडी में एंटर हुआ और जाके जीन लेवल पे चेंजेस करवा दिए. देयर आर सम एक्शंस व्हिच आर नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ DNA. सम स्टडीज सजेस्ट दैट मेनी स्टेरॉइड्स इंक्लूडिंग एल्डोस्टेरोन एलिसिट नॉट ओनली स्लोली डेवलपिंग जीनोमिक इफेक्ट, जिसको काफी टाइम लगता है, कुछ घंटे लग जाते हैं. These non-genomic actions are believed to be mediated by binding of steroid to the cell membrane receptors that are coupled to the second messenger system, such as cyclic AMP. तो इनसे भी इनका इफेक्ट known है. ठीक है, not very well studied, but anyways.
सो बात क्या हुई, ले देके कि ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये सेल के अंदर जाके डीएनए एक्सप्रेशन भी चेंज करता है और सेल के बाहर रिसेप्टर्स पे भी बाइंड हो सकता है एंड एक्टिवेट्स द साइक्लिक एएमपी और अदर सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स। अब ये रेगुलेट कैसे होता है भाई, एल्डोस्टेरॉन कब रिलीज होगा बॉडी में, कब रिलीज नहीं होगा। सो रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन इज सो डीपली इंटरट्वाइंड विद द रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर बॉडी में से फॉर एग्जांपल सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम है तो एल्डोस्टेरॉन आएगा ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके। ओके, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नोन टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सो नंबर 1, इंक्रीज पोटेशियम। बॉडी में पोटेशियम बढ़ेगा, एल्डोस्टेरॉन को बुलाओ ताकि पोटेशियम को बाहर निकाले। इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 इज एन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्टिमुलस फॉर एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन, क्योंकि जब कभी ये एंजियोटेंसिन 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट हुआ। ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, इसका मतलब ये है कि देयर इज हाइपोवॉलीमिया, यानी वॉल्यूम कम हुआ है बॉडी में, तभी तो ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ना भाई, मजा तब आए जब आपने रीनल फिजियोलॉजी पढ़ी हुई हो, तो मेरी ये बातें सुन के अच्छी लगेगी आपको, वरना आप सर खुजा रहे होंगे क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है डॉक्टर आसिफ। एनीवे, सो एंजियोटेंसिन 2 इज एन स्टिमुलेटर फॉर एल्डोस्टेरॉन। तो अगर एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हुआ है मतलब रैस एक्टिवेट हुआ है, मतलब हाइपोवॉलीमिया है, बॉडी को वॉल्यूम की जरूरत है, बॉडी को लिक्विड की जरूरत है, एल्डोस्टेरॉन को बुलाओ ताकि सोडियम एब्जॉर्ब हो, लिक्विड एब्जॉर्ब हो, वॉल्यूम सेट हो। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है इंक्रीज सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड स्लाइटली डिक्रीजेस, बिकॉज ऑलरेडी सोडियम बढ़ा हुआ है तो इट विल डिक्रीज ओके द एल्डोस्टेरॉन लेवल, क्योंकि अगर सोडियम बढ़ा हुआ है और एल्डोस्टेरॉन बढ़ा देंगे तो सोडियम मजीद बढ़ेगा ना यार, कॉमन सेंस की बात है। देन इंक्रीज ANP, atrial natriuretic peptide, a hormone secreted by the heart when specific cells of the cardiac tissues are stretched, such as in cardiac failure. That also decreases aldosterone, क्योंकि हार्ट फेल हो रहा है अगर, और फेलिंग हार्ट में आप एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा निकाल रहे हैं तो वो ज़्यादा लिक्विड लेके आएगा, प्री लोड बढ़ेगा हार्ट पे। यू डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट दैट इन अ कंडीशन व्हेन द हार्ट इज ऑलरेडी फेलिंग, तो आपको एल्डोस्टेरॉन को सप्रेस करना पड़ेगा। सो फेलिंग हार्ट कंडीशन में नॉर्मल रिस्पॉन्स बॉडी का ये होता है कि एल्डोस्टेरॉन के लेवल्स कम होते हैं। ओके, it all should make sense. And then the last one is ACTH from the anterior pituitary is necessary for aldosterone secretion, but it has little effect in controlling the rate of secretion. Primarily it is the angiotensin 2. Okay, now of these factors, potassium ion concentration and angiotensin 2 are the most important regulatory mechanisms. Okay, तो ये सारी बात हम कर चुके हैं। Good. So let's move on and let's talk about, by contrast, the effect of ANP. और ये मैं सब बता चुका हूँ कि if the heart is failing, you don't want more aldosterone because heart already fail हो रहा है। आप नहीं चाहते कि इस बेचारे failing heart पर आप aldosterone बढ़ाएं जो कि सोडियम रीअब्सॉर्ब करवाए, वाटर रीअब्सॉर्ब करवाए और प्री लोड इंक्रीज कर दे आपके हार्ट पर। It's already failing, guys. So ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट थे एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड के हवाले से। Now let us start talking about what are the functions of another category of cortex hormones from the adrenal, and that is the glucocorticoid. इसका primary hormone क्या था? The name was cortisol. That was the main one. ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब functions of glucocorticoids की। अब glucocorticoids का मामला ऐसा है कि they are, you can actually say these are essential for life. ठीक है, so they are important for life because in the absence of glucocorticoids, individuals cannot survive and they cannot have any mechanism to resist stress. और बॉडी में जब स्ट्रेस की बात करते हैं so it can obviously be external stress but it can also be internal in terms of infection. So अगर infection है तो वो stress की situation है। So glucocorticoids are all required for all sort of stress handling. So even though mineralocorticoid can save life of an acutely adrenalectamized animal, यानी अगर किसी एनिमल में एड्रिनल ग्लैंड आपने निकाल दिया हो और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दें तो लाइफ सेव हो जाती है, बट द एनिमल स्टिल इज नॉट नॉर्मल बिकॉज एड्रिनल निकाला हुआ है तो सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी नहीं होगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज एसेंशियल फॉर लाइफ। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अफेक्ट्स लाइक डिफरेंट types of metabolism, including metabolism of carbohydrates, metabolism of protein and fats and inflammation
काफ़ी ज़्यादा इसके कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज हैं, इसीलिए इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. फर्दर मोर एनिमल्स कैन नॉट रेजिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल और इवन मेंटल स्ट्रेस, सो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस जो मैं बता रहा था. एटलीस्ट 95% ऑफ द ग्लूकोकॉर्ड एक्टिविटी of the adrenocortical secretion result from cortisol. The main जो glucocorticoid है that is cortisol. But आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस cortisol ही को हम hydrocortisone भी कहते हैं, HC. In addition there are some other ones. उनमें से कम आपको corticosterone का नाम पता होना चाहिए, which also have considerable glucocorticoid activity. But cortisol is the primary one and hydrocortisone is the other name for cortisol. Okay? अब one by one करके इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हम एक्शन देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स. एंड यू नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द टेक होम मैसेजेस, और टेक होम मैसेजेस बुलेट हेडिंग्स में है. सो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यू नीड टू रिमेंबर दिस कि इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस. इनका काम है टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. The best known metabolic effect of cortisol, which is a glucocorticoid, is basically to stimulate gluconeogenesis in the liver, because this is where glucose is formed most of the times. You know that. मेरे carbohydrate metabolism के lectures देखो यार, जो biochemistry में करवा रहा हूँ सत्यनारायण से. This increased rate of gluconeogenesis results mainly from direct effect of cortisol on the liver cells as well as by antagonizing the function of insulin. So insulin का काम इसका opposite है ना, वो gluconeogenesis इसने increase करना है, more and more glucose formation in the liver. Now cortisol क्या करता है? It increases the enzymes required for converting the amino acids into glucose in the liver. So अगर वो सारे enzymes activate हो जाएंगे तो ज़्यादा glucose बनेगा. Cortisol causes mobilization of amino acid from extrahepatic tissue and bring them into the liver. Liver में आओ, ज़्यादा से ज़्यादा glucose बनाओ. Amino acid पकड़ के लाता है, उनसे बनवाता है glucose. यही definition है gluconeogenesis की, formation of glucose from non-carbohydrate sources. तो उसके लिए carbon skeleton चाहिए होगा, amino acid use होते हैं. Cortisol also antagonizes the effect of insulin to inhibit gluconeogenesis in the liver. तो इंसुलिन इनहिबिट कर रहा होता है, ये उसको ऑगमेंट कर देता है यानी अपोज करता है इंसुलिन के एक्शन को. This is what it is doing in terms of stimulating gluconeogenesis. There is then marked increase in glycogen storage in the liver because there is more glucose formation, more glycogen storage. Okay, so that is one thing that you need to remember. Step number 1 is stimulation of gluconeogenesis. What else glucocorticoids do with the carbohydrates? They decrease the glucose utilization by the cell. अगेन ये इंसुलिन का अपोजिट हो गया, क्योंकि इंसुलिन का पर्पस ये होता है कि जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर चला जाए. इट इज डिक्रीजिंग द सेम थिंग. कॉर्टिसोल ऑल्सो कॉजेज अ पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि सेल में न घुसे ग्लूकोज, ब्लड में ज्यादा रहे. सो मोर एंड मोर ग्लूकोज अवेलेबल इन द ब्लड. Cortisol also causes a moderate decrease in the glucose utilization by most cells in the body. Although the precise cause of this decrease is unclear, one important effect of cortisol is to decrease the translocation of the GLUT4 receptors. इनको ये हटा देता है ताकि ये GLUT4 receptor ही नहीं होंगे तो ग्लूकोज एंटर ही नहीं होगा सेल के अंदर. Okay? Glucocorticoids may also depress the expression and phosphorylation of the other signaling cascades जो कि ग्लूकोज एंट्री into the cell करवाते हैं. For example, glucocorticoids reduce the expression of insulin receptor substrate 1. So, insulin का action यहाँ खत्म हो जाएगा, glucose cell के अंदर enter नहीं होगा, that sort of thing, okay? ये चीज़ें इस वक्त नॉट रेलेवेंट, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इसकी क्योंकि दिस इज टू मच देन लिंक्ड विद बायोकेमिस्ट्री स्टफ. सो बाद में बात करेंगे इसके बारे में जब बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्कस होगी. ओके, नाउ एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन एंड एड्रीनल डायबिटीज. ये नाम सुना है आप लोगों ने? एड्रीनल डायबिटीज ये क्या होता है? अब तक हम जितनी बात कर रहे हैं उसमें क्या बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो यार वो डायबिटीज हो गई ना. और किसकी वजह से हो रही है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से आ रहा है? एड्रीनल से आ रहा है. तो ऐसी डायबिटीज को या ऐसे इंक्रीज ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज को हम तफरीहन मजाक में नाम दे देते हैं एड्रीनल डायबिटीज. नाउ बोथ द इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड मॉडरेट रिडक्शन इन द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द सेल, यानी ग्लूकोज बन भी ज्यादा रहा है और सेल के अंदर भी नहीं जा रहा. As a result, there is increased blood glucose in the plasma, obviously. For the reason described, this is called then adrenal diabetes situation. पूरा पैराग्राफ यही लिखा हुआ है. The increase in the blood concentration of glucose is occasionally great enough, and then the condition is called adrenal diabetes. Effect of cortisol, ये तो था सारा. तो अगर मैं आपसे नटशेल में पूछूं कि what is the effect of glucocorticoid on carbohydrate metabolism, so one short answer would be increased glucose in the blood.
ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोटीन पर क्या है. सो पहला इफेक्ट है रिडक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर प्रोटीन रिड्यूस. वन ऑफ द प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन द मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ द बॉडी इज रिडक्शन ऑफ द प्रोटीन स्टोर्स इन द बॉडी. क्योंकि एक्चुअली ये करके आ रहा होता है, जगह जगह से अमाइनो एसिड लेकर के आता है लिवर में, और लिवर को बोलता है भाई ग्लूकोज बना, तो प्रोटीन स्टोर्स कम हो रहे हैं, ग्लूकोज स्टोर्स बढ़ रहे हैं. This reduction is caused by both decreased protein synthesis as well as increased catabolism and taking the amino acid to the liver basically. Both these effects may result partly from decreased amino acid transport into the extrahepatic tissue as discussed later in the chapter, but this is probably not the major thing. So don't worry about this. Just remember कि protein synthesis भी कम हो रही है at the DNA RNA level और protein breakdown बढ़ रहा है ताकि अमाइनो एसिड निकलें, उसको लेके लिवर में जाएं और लिवर में जाके ग्लूकोज बनाएं. सारा पर्पस है ग्लूकोज बनाना. कॉर्टिसोल इंक्रीजेस लिवर एंड प्लाज्मा प्रोटीन. दैट्स एन इंपॉर्टेंट बेट, क्योंकि यहाँ सेल्स में प्रोटीन कम कर रहा है लेकिन लिवर में देखें क्या कर रहा है. सो कोइंसिडेंटली व्हेन द इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड टू रिड्यूस प्रोटीन एल्सवेयर इन द बॉडी, द लिवर प्रोटीन्स आर इंक्रीज. दैट्स द ब्यूटी. अक्सर स्टूडेंट्स से मैं एग्जाम में सवाल करता हूँ कि भाई मुझे कॉर्टिसोल का इफेक्ट बताओ प्रोटीन्स पर, तो ऑब्वियसली उनका जवाब होता है कि सर ये डिक्रीज करता है. और डिक्रीज करने का मतलब फिर ये है कि हर जगह करता है या सिर्फ कहीं कहीं करता है, कहीं कहीं इंक्रीज भी करता है. ज़्यादातर सेल्स ऑफ द बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस कम होती है लेकिन लिवर में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है. दैट्स important point. Furthermore, the plasma protein which are produced obviously by the liver, they also are increased. Okay, these increases are an exception to the protein depletion that occurs anywhere else in the body by the cortisol. हर जगह प्रोटीन कम करेगा, लिवर में प्रोटीन बढ़ाएगा. It is believed that this difference result from a possible effect of cortisol to enhance amino acid from beautiful theory. अब देखें, ये एक जगह है और ये है लिवर. ठीक है, लिवर में ये प्रोटीन बढ़ाता है ताकि वो ब्लड में आए, और वो प्रोटीन फिर क्या करे पता है, वो यहाँ से अमाइनो एसिड को पूरे बॉडी से उठा के यहाँ लिवर में लाए. तो ये जो उठाने वाला कैरियर प्रोटीन है ये तो लिवर में ही बनेगा ना. तो अब अगर मुझे इस अमाइनो एसिड को उठाना है तो ऑब्वियसली मुझे कैरियर प्रोटीन ज्यादा बनाने पड़ेंगे. तो नेचर ने क्या खूबसूरती से आपकी बॉडी को डिजाइन किया है कि वही कॉर्टिसोल है, बाकी तमाम जगहों पे प्रोटीन की सिंथेसिस को कम कर रहा है. लेकिन अगर हम बात करते हैं लिवर की, तो लिवर में प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा है. ओके, नाउ इंक्रीज ब्लड अमीनो एसिड डिमिनिश ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड इनटू एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स एंड इनहैंस ट्रांसपोर्ट इनटू द हेपेटिक सेल. बस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है कि ये अमाइनो एसिड को पकड़ेगा फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स, एंड लेके जाएगा उनको टू द लिवर. स्टडीज इन आइसोलेटेड टिश्यूज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कॉर्टिसोल डिप्रेसेस अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट into muscles and perhaps increases into the liver. So liver में बढ़ा रहा है अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट. अगेन पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि लिवर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज प्रोडक्शन हो. द डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड into extrahepatic decreases their intracellular amino acid concentration and consequently decreases the synthesis of the protein. So that's what is happening in other cells. Other cells का मतलब extrahepatic cells. लेकिन liver में मैंने आपको बता दिया कि इसका उल्टा होता है. Okay, the increased plasma concentration of amino acid and enhanced amino acid transport into the hepatic cell by cortisol could also be account for enhanced utilization of amino acid by the liver, increased rate of de-amino, all meaning one thing, कि ज़्यादा अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टू द हेपेटिक टिश्यू सो दैट यू गेट मोर एंड मोर ग्लूकोनेओजेनेसिस. सो बेसिक पर्पस ऑफ कॉर्टिसोल बेसिकली इज टू इंक्रीज द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड. तो अब मैं समराइज करूं, कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट था कॉर्टिसोल का? इंक्रीज ग्लूकोज. प्रोटीन पे क्या इफेक्ट है अगर मैं आपसे पूछूं? सो डिक्रीज प्रोटीन एनीवेयर एल्स बट इंक्रीज प्रोटीन इन द लिवर. ओके, एंड ऑल्सो इन द प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा की जो प्रोटीन्स है वो लिवर में ही बनती हैं और उनका काम है टू कैरी अमाइनो एसिड फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज टू द लिवर ताकि क्या हो सके? ग्लूकोनेओजेनेसिस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन फैट मेटाबॉलिज्म. सो पहला इफेक्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड. इन मच द सेम मैनर cortisol promote the amino acid mobilization from the muscle, it also promote mobilization of fatty acid because fatty acids are also important source of carbon skeleton and we need carbon to make glucose. और cortisol का दुनिया में आने का मकसद ये है कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ाना है. सो हर वो चीज़ जो ग्लूकोज बना सकती है उसको वो पकड़ के लाएगा पूरी बॉडी से, लिवर में डालेगा. ठीक है,
This mobilization increases the concentration of free fatty acids in the plasma, which also increases the utilization for energy as well as their use in gluconeogenesis. The mechanism by which cortisol promote fatty acid mobilization is not completely understood. Okay, we are happy with that. The increased mobilization of fat by cortisol combined with the increased oxidation of fatty acid in the cells shift the metabolism of the cells from utilization of glucose for energy to utilization of fatty acid for energy. Beautiful, beautiful thing, because now cortisol की सारी efforts क्या हैं? Cortisol की efforts ये हैं कि glucose सेल्स में न घुसे, सेल में न जाए, सेल में यूटिलाइज ना हो फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, तो भाई कुछ और अल्टरनेट भी तो देना पड़ेगा, वो अल्टरनेट फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड को मोबिलाइज करता है ताकि ये यूज हो एज ए स्केलेटन फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एज वेल एज टू बी यूटिलाइज फॉर द जनरेशन ऑफ एडीपी। जब फैटी एसिड यूज होना शुरू हो जाएंगे एडीपी बनाने के लिए, तो ग्लूकोज स्पेयर हो जाएगा, सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। मैंने आपको बताया ना, इसका सारा पर्पज है कि बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाएं। Then there is excessive control. Cortisol causes obesity. ये important point है. Although cortisol can cause moderate degree of fatty acid mobilization from adipose tissues, a peculiar type of obesity develop in many people. अगर cortisol ज़्यादा secrete होता है और उस obesity में there is a typical pattern of the body. तो कुछ regions हैं जैसे कि fat in the chest and head regions of the body, and there is moon phase development, edematous phase होता है, buffalo-like torso, and all these are because of increased cortisol. हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में कि what happens in Cushing syndrome for example. Okay? तो कार्बोहाइड्रेट पे इफेक्ट आपने देख लिया, प्रोटीन पे इफेक्ट देख लिया, फैट पे इफेक्ट देख लिया, और नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट what else. It is also very important for stress handling and inflammation. Almost any type of stress, whether physical or neurogenic, causes an immediate and marked increase in the ACTH secretion. And once you've got more ACTH, you get more cortisol. Okay? And that can be any type of stress. It can be because of trauma, infection, extreme heat and cold. It can be, any surgery or any debilitating disease. All these can cause stress in the body, more cortisol, and then the rest. Okay? More cortisol matlab more glucose in the blood, more amino acid transport from the tissues to the liver, more fatty acids mobilized. All these things will happen. Okay? Right. Anti-inflammatory effect. So this is also anti-inflammatory. Actually, hydrocortisone is also used. Dexamethasone is used for reducing inflammation in several conditions. When tissues are damaged by trauma, by infection, or by, any other thing which basically leads to inflammation, the job of cortisol is to suppress, block the inflammation. That's what it does. Okay? 5 main stages of inflammation occur. There is release of damaged tissue. ये हमने बहुत डिटेल में inflammation पढ़ी हुई है पैथोलॉजी में. Release from the damaged tissue. जो tissue जो damage हुआ है उसमें से there are some prostaglandins released, bradykinin, histamine. There are chemicals which are released from the damaged tissue. Then there is increased blood flow to the inflamed area. So इस जगह पे blood flow बढ़ जाता है. और then there is leakage of large quantities of plasma, and then edema होता है वहाँ पे. Then that area is infiltrated by a lot of immune cells. WBCs आ जाते हैं, neutrophils and macrophages and all these things. So that is known as the general process of inflammation. When large amount of cortisols are secreted or injected into a person, glucocorticoid has 2 basic anti-inflammatory effects. Number 1, it can block the early stages of inflammation. And number 2, inflammation अगर already start हो गई है, so it can actually resolve the process of inflammation. So basically ये anti-inflammatory है, and that's what you need to remember. Okay? Cortisol prevents the development of inflammation. कैसे? It stabilizes the lysosomal membranes, and the stabilization is one of its most important anti-inflammatory effects because it is much more difficult than normal for the membranes of the intracellular lysosome to rupture. और वो rupture नहीं होंगी तो chemicals release नहीं होंगे. तो cortisol जाके cells की जो damage हो रहे हैं उनके lysosome की walls को fix कर देता है so that they are not ruptured and nothing leaks out. Okay? Then cortisol decreases the permeability of the capillary. Permeability अगर decrease हो जाएगी कैपिलरी की तो एडिमा नहीं होगा, प्लाज्मा नहीं निकलेगा, जो migration of blood cells हैं वो भी inhibit हो जाएगा. So it decreases migration of the white cells as well. Leukocytes, neutrophils ये नहीं निकलते. अब देखें जो स्टेप इन्फ्लेमेशन में हो रहे थे ये उन तमाम स्टेप्स को रोक रहा है. So it is anti-inflammatory. It suppresses the immune system as well. आपके lymphocytes को बोलता सो जाओ बेटा सो जाओ. Cortisol attenuates fever mainly because it reduces the secretion of interleukin-1 from the white cell. So ये तमाम वो काम कर रहा है जिससे inflammation shut down हो. Therefore, the cortisol has almost global effect in reducing all aspects of the inflammatory process. So it's a very potent anti-inflammatory.
cortisol causes resolution of inflammation. So this one number one, it stops inflammation from starting. And number two, अगर inflammation start हो गई है तो ये इसको resolve भी करने में help करता है. So even after inflammation has become very well established, administration of cortisol can often reduce the inflammation in few hours, sometimes few days as well. The immediate effect is to block most of the factors that promote inflammation. In addition, however, the rate of healing is enhanced. This probably result from the same mainly undefined mechanisms, but this is what happens. Mobilization of amino acid and use of these acids to repair the damaged tissue. So damaged tissue का repair शुरू हो जाता है, gluconeogenesis start हो जाती है. So there is some extra glucose available for the critical metabolic system. Inflamed tissue is a very, very critically ill system. So it needs a lot of energy, it needs a lot of glucose, you know. Increased amount of fatty acids are available also for energy. Some effect of cortisol for inactivating and removing the inflammatory products. So इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट होने से भी रोकता है, अगर स्टार्ट हो गई है तो उसको रिजॉल्व करने में भी हेल्प करता है. प्योर एंटी इन्फ्लेमेटरी. Regardless of the precise mechanism by which anti-inflammatory effect occur, this effect of cortisol plays a major role in combating certain types of diseases such as rheumatoid arthritis, rheumatic fever, और actually ये हमारी ट्रीटमेंट रेजीम का भी important part होता है स्टेरॉइड. Okay, particularly in treating those diseases जिनका यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, rheumatoid arthritis, rheumatic fevers, all these sort of things. When cortisol or other glucocorticoids are administered to the patients with these diseases, almost invariably the inflammation begins to subside within 24 hours. इतना strong anti-inflammatory effect है इनका. Okay, so अगर थोड़ा सा इस blue box को हम देख लें तो इसमें एक दो important clinical stuff है. फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिसोल यूज करते हैं एज ए ट्रीटमेंट हम इन अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक करता है. तो काफी सारी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं, देयर आर सो मेनी एलर्जिक डिसऑर्डर्स ना, इवन एस्थमा में भी यूज किया जाता है कॉर्टिसोल एट सम टाइम पॉइंट इन द लेटर. सो द पॉइंट इज कि बिकॉज इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, इट इज यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ एनी रीजन. एनाफिलैक्सिस है, एलर्जी है, सो यू यूज कॉर्टिसोल as one of the important therapeutic regime ताकि inflammation suppress हो. What is the effect of cortisol या glucocorticoid on the blood cells and on immunity in infectious diseases? Now, cortisol decreases the number of eosinophil as well as lymphocyte. So, obviously, एक बात अब जो important समझनी है आपको कि this is immunosuppressive drug. So, if somebody is on steroid, जाहिर है ये आपके immune cells को shut up कर रहा है. So, obviously, immunosuppression हो रही है. Okay? So ये बात आपको पता होनी चाहिए. Then what is the cellular mechanism? देखें, cortisol steroid hormone है, therefore it gets into the cell, it is lipid soluble, it goes inside the cell membrane से चला जाता है, and then it binds with the protein receptor inside the cytoplasm, और फिर वो जो receptor है it goes to the DNA, न्यूक्लियस तक जाएगा, और फिर glucocorticoid response elements होते हैं DNA पर, which are actually, इसको आसान ज़माने समझ लें कि ये glucocorticoid binding areas होते हैं DNA पर. एक दफा जब ग्लूकोकॉर्टिकोइड इस पे आके अटैच हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनएस एंड यू स्टार्ट कोडिंग दोस प्रोटीन्स. ओके, अच्छा, अब ये एक डिस्कशन मजे का आने वाला है बिकॉज इसमें हम बात करेंगे 11 बीटा HSG. आपको थोड़ी देर पहले इस चैप्टर में मैंने बताया था 11 बीटा HSG2. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट HSG1. सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. An important mechanism for modulating the physiological effect of cortisol is a local tissue expression of isoform of 11 beta hydroxydehydrogenase 1, which is known as the HSG1. जो HSG2 है वो क्या करता था, हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिकली उसका काम ये था कि जो कॉर्टिसोल है जो अपना एक्शन तो करेगा ही, साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन भी कर सकता है, उसको वो कन्वर्ट कर देता था एक और कंपाउंड में जिसका नाम था कॉर्टिसोन. सो इट वाज कन्वर्टेड इनटू कॉर्टिसोन एंड द एंजाइम रिस्पांसिबल हियर वाज 11 बीटा HSG2. तो ये ऐसे करने से क्या हो रहा था, ऐसा करने से हो ही रहा था कि जो कॉर्टिसोल है जब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे बाइंड करता था तो ये अपना मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन नहीं कर पाता था बिकॉज जो 11 बीटा HSG2 है वो इसके मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन को रोक देता था. सो देयरफॉर अगर 11 बीटा HSG2 में म्यूटेशन है और वो डेफिशिएंट है देन व्हाट विल हैपन कि जो कॉर्टिसोल है उसको रोकने वाला अब कोई नहीं है. किस चीज से रोकने वाला? मिनरलोकॉर्टिकॉइड पे एक्शन करने से रोकने वाला. देयर इज नो वन टू स्टॉप इट फ्रॉम वर्किंग ऑन द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर. सो इट विल वर्क ऑन द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंड देयरफॉर वी कॉल द सिंड्रोम एज एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस. यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा नहीं है
लेकिन कॉर्टिसोल अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह काम कर रहा है, इसको रोकने वाला ये बीटा HSG2 है नहीं। दूसरी एक चीज मैंने बताई थी जो बीटा HSG2 को ब्लॉक करता है, दैट इज यूज ऑफ लेक्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। देयरफॉर इफ देयर इज नो 11 बीटा HSG2 देन कॉर्टिसोल आल्सो एक्ट एज एल्डोस्टेरोन बेसिकली, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह काम करता है। नाउ कन्वर्सली देयर आर टिश्यूज सच एज लिवर, ब्रेन एंड एडिपोज टिश्यू, आल्सो लंग, स्किन एंड स्केलेटल मसल, दे एक्सप्रेस अनदर वेरिएंट व्हिच इज नोन एज 11 बीटा HSG1 और इसका काम है जो इनएक्टिव कॉर्टिसोल बना है उसको दोबारा कॉर्टिसोल बनाता है। तो यार ये बड़ी मजे की चीज है। तो ये जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल को इनएक्टिव करना यानी कॉर्टिसोन बनाना 11 बीटा HSG2 का काम है और कॉर्टिसोन को वापस एक्टिव करना 11 बीटा HSG1 का काम है। ओके, सो 11 beta HSG1 expression amplifies the physiological effect of glucocorticoid, whereas HSG2 reduces the physiological effect of glucocorticoid because वो इसको convert कर रहा है एक inactive compound में और one inactive को दोबारा active compound में convert कर रहा है. Okay, so that's an important correlation that you have to remember. Some studies suggest that increased adipose tissue expression of HSG1 and excessive glucocorticoid activity may contribute, क्योंकि जब HSG1 ज्यादा एक्सप्रेस होगा तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी बढ़ेगी बिकॉज कॉर्टिसोन कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्टिसोल में. Okay, so there will be more glucocorticoid activity. It may contribute to the metabolic abnormalities including insulin resistance as well as diabetes. Elevated brain 11 beta HSG1 also has been associated with cognitive decline with aging. So ये important correlations हैं यार, याद रखनी पड़ेंगी आपको. अब आखिर में इस चैप्टर के what we have to talk about is how the glucocorticoid secretion is actually regulated, and you have to remember this name ACTH, adrenocorticotropical hormone का जो स्टिमुलेशन है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिससे ये सब सिस्टम कंट्रोल होता है. सो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कंट्रोल करता है. सो अनलाइक एल्डोस्टेरोन, secretion of from by the zona glomerulosa which is controlled mainly by the potassium and angiotensin 2, और ग्लोमेरुलस से क्या निकल रहा था, एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड. ठीक है, directly act on the adrenocortical cell. Secretion of cortisol is controlled entirely by ACTH. Okay, and it is secreted by the anterior pituitary. So this particular hormone secreted from anterior pituitary is responsible for release of cortisol. And this hormone, so-called the corticotropin or adrenocorticotropin, also enhances the production of androgen. So basically, if this is adrenal gland, ACTH from the this is anterior pituitary, यहाँ से ATH निकलता है और cortisol release करवाता है, और खुद ACTH anterior pituitary से निकलता है under the influence of hypothalamus CRF, corticotropin releasing factor. यहाँ थोड़ी सी इन्होंने केमिस्ट्री की बात की है कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है वो क्या है. इट इज अबाउट 39 अमीनो एसिड. टू बी ऑनेस्ट यार ये कोई पूछता भी नहीं है तो ये टेंशन ना लो इसकी. हाँ, ये पाथवे पता होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है ACTH और ACTH जाके निकलवा रहा है कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल, और खुद ACTH को निकलवा कौन रहा है, CRF यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर. So ACTH की अपनी secretion is controlled by corticotropin releasing factor from the hypothalamus. So hypothalamus is the master, then anterior pituitary, और इससे cortex पे release होंगी चीजें. In the same way that other pituitary hormones are controlled by releasing factors in the hypothalamus. So मैं बार बार कहता हूँ ना अपने endocrinology के lectures में कि pituitary को पहले master gland कहते थे, अब hypothalamus actually master gland है. ठीक है, तो CRF आएगा और ACTH release करवाएगा. That's the story. Then ACTH activates adrenocortical cells to produce steroids by increasing the cyclic AMP. ACTH कहाँ से निकलता है? From the anterior pituitary. It goes to the cortex, और यहाँ पे जो cells हैं उनमें ये cyclic AMP की concentration को बढ़ा देता है, और इसकी वजह से what happens कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो start कर देता है अपना metabolism in forming the cortisol. So basically the story goes like this कि when the adrenal cells receive ACTH, ये adrenal cells हैं, इन पे ACTH मिलेगा, तो अब इस सेल के अंदर क्या होगा कि there will be increased cyclic AMP. increased cyclic AMP की वजह से because adenylyl cyclase की एक्टिविटी बढ़ेगी, cyclic AMP का अमाउंट बढ़ेगा, there will be protein kinase A activation, and now cholesterol will be converted into pregnenolone. It is one of the very initial steps of formation of cortisol. So ये जो pathway start होता है स्टीरॉइड या कोलेस्ट्रॉल से ये कॉर्टिसोल बनने का,
वो स्टार्ट होता है बाय अ किक फ्रॉम द साइक्लिक एएमपी. So that's a very very important point. Okay, now physiological stress increases ACTH and adrenocorticotropic secretion, and that's important. रीजन उसका ये है बिकॉज देखिए मैं बार बार आपसे कह तो रहा हूँ कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो स्ट्रेस को हैंडल करते हैं. जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं. तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये ज्यादा निकलना चाहिए ना, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर इन द चैप्टर. और यहाँ बल्कि इस जुमले को रिप्लेस कर दो इस जुमले से, जैसा कि मैं चीख चीख के कह रहा हूँ, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर इन द चैप्टर, ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस कैन लीड विद इन मिनट्स टू ग्रेटली enhance ACTH secretion and heavy secretion of up to 24 secretion of cortisol. ठीक है, pain stimuli caused by physical stress or tissue damage can also do the same thing, and mental stress can also increase the concentration of ACTH and subsequently the increased concentration of cortisol. Inhibitory effect of cortisol on hypothalamus and anterior pituitary. That's kind of a feedback mechanism. ये हमारी बॉडी में जनरल enzymatic feedback mechanism है कि देखो सीधी सी बात है यार, अगर ठीक ठाक कोलेस्ट्रॉल रिलीज कर दिया है ज्यादा अमाउंट में, तो अब इस ACTH का काम हो गया ना, कोर्टिसोल अपना काम जाके करेगा ना. तो ये कोर्टिसोल नेगेटिवली रेगुलेट करता है ACTH की सिक्रीशन को. कहने का मतलब ये कि मैं बहुत निकल गया हूँ, अब तुम मजीद न निकलो, क्योंकि तुम मजीद निकलोगे तो मैं और ज्यादा बढ़ूंगा, मुझे अब रोकना है अपने आप को. सो इट इनहिबिट्स एट द लेवल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, इट आल्सो इनहिबिट्स एट द लेवल ऑफ हाइपोथैलेमस. तो ये CRF के लिए भी नेगेटिव फीडबैक है और ACTH के लिए भी नेगेटिव फीडबैक है कोर्टिसोल का. ओके, राइट. So cortisol has direct negative feedback effect on the hypothalamus, CRF के लिए, as well as on the anterior pituitary for ACTH. Simple stuff है, ठीक है. पूरी समरी इसकी क्या है, ये फिगर पूरी जो अभी हमने समझ ली कि this is what happens. One more time, you should be able to explain the picture with fine details. इससे अंदाजा होगा कि आपको सही से पता भी है कि नहीं. So this is the target organ जिसका नाम adrenal cortex है. इसमें से निकलना है cortisol. This is what we are studying. Cortisol निकलेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH और ACTH निकलता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. ACTH क्यों निकलता है? बिकॉज हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर आता है, हाइपोथैलेमस से मैसेज इधर और ACTH निकल के इधर एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, और बाहर निकला कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल आ गया, कहता अब तो मैं आ गया हूं, तो अब मैं इसको भी नेगेटिव फीडबैक से स्टॉप करूं ACTH को, और हाइपोथैलेमस पे जाके CRF को भी स्टॉप करूं. सो ये पूरी डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी है. और वो कौन है जो CRF को इनिशिएट करवाता है? वो स्ट्रेस है, वो इन्फ्लेमेशन है. स्ट्रेस से हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और कॉर्टिसोल बढ़ेगा. टेंशन नहीं लेनी, वरना कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाएंगे. ओके, सो दैट इज फिगर 78. Which shows the overall system for the control of the cortisol secretion. The key to this control is the excitation of the hypothalamus by different type of stress. ये diagram अब मैं आपको समझा चुका हूँ, so that's fine. Okay. Now, direct feedback of cortisol to both the and that's a negative feedback by the way. ये hypothalamus को भी block कर रहा है, anterior pituitary को भी block कर रहा है. hypothalamus को बोल रहा है भाई तू CRF मत रिलीज कर, पिट्यूटरी को बोल रहा है भाई तू ACTH मत रिलीज कर, क्योंकि तेरा भाई कॉर्टिसोल ऑलरेडी बहुत लंबी चौड़ी क्वांटिटी में ब्लड में मौजूद है, तो भाई तुम लोग रुक जाओ, मजीद कॉर्टिसोल नहीं चाहिए अपने को. ओके, नाउ सर्कैडियन रिदम ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज if you see there is an AM, then 12 noon and then PM, and you see these are the timings 8 AM when you have the peak of glucocorticoid and then it declines. तो ये आपको पता होना चाहिए rhythm pattern. The secretory rate of CRF, ACTH and cortisol are high in the early morning but low in the evening. अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने आपसे कहा कि ACTH निकलते हैं और ये सब चीजें निकलती हैं अंडर स्ट्रेस, है ना. सुबह तो आप सो के उठे होते हैं, तो सारी रात मजे से रिलैक्स होके सुबह सो के उठते हैं और सुबह के वक्त की लेवल इतना ज्यादा हाई होता है. तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि रिलैक्स होने से ये स्ट्रेस तो कम होना चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए तो कॉर्टिसोल लेवल तो कम होना चाहिए. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक अर्ली इन द मॉर्निंग द कॉर्टिसोल लेवल इज वेरी वेरी हाई? थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू. मुझे मैसेज में आप जवाब दें एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू कि ऐसा क्यों होता है. Okay, so that's in the morning around 8 AM. The levels are very very high. The effect results from 24 hours cyclical rhythm. So this is the diagram basically, and then throughout the day it goes down. Okay, synthesis and secretion of ACTH. यार ये बड़ी मजे की हेडिंग है because इसमें से क्लिनिकल चीजें पूछी जाती हैं. So you must understand कि ACTH का melanocyte stimulating hormone lipotropin और endorphin के साथ क्या ताल्लुक है. ACTH पहले तो बताओ यार निकलता कहां से? ACTH निकलता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी.
Okay, अब सुनो कहानी. When ACTH is secreted by the anterior pituitary, several other hormones that have similar chemical structure वो भी पुदक के anterior pituitary से बाहर रहते हैं. और वो दूसरे hormones कौन से हैं? वो हैं melanocyte stimulating hormone, leptropin and endorphins. So the gene that is transcribed to form the RNA molecule for ACTH also forms a prohormone called pro-opiomelanocortin, which is the precursor of the ACTH, and several other peptide. यानी जो DNA है उस DNA से हमारे पास POMC बनता है. POMC बोले तो pro-opiomelanocortin. इस POMC से एक तो चीज बनती है जो ऑब्वियसली हमें चाहिए, ACTH. बाकी भाई और बहुत सारी भी चीजें बन जाती हैं, और वो बहुत सारी चीजें हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लाइपोट्रोपिन, एंडोर्फिन. तो ये जहां ACTH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, इन सब फुजुल चीजों की, यार फुजुल तो नहीं है वैसे, इन सब की भी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है. ओके, सो POMC जीन इज एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड इन सेवरल टिश्यूज. ये मजे की चीज नहीं है. अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं. इन मेलानोसाइट लोकेटेड इन अबंडेंस बिटवीन the dermis and the epidermis of the skin, melanocyte stimulating hormone stimulate the formation of black pigment melanin and disperse it to the epidermis. Injection of melanocyte stimulating hormone into a person over 8 to 10 days, darkening of the skin हो जाती है. तो अब यहाँ पे भी तो यही हो रहा है. आप एज अ बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं melanocyte stimulating hormone. सो अगर किसी बंदे में किसी भी, यार अब मैं इसको बॉटम लाइन बताऊं आपको, सुनो ये मजे की बात बताऊंगा, सारे लोग स्ट्रेस लेना छोड़ देंगे. देखो भाई, स्ट्रेस लोगे तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा. कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ेगा. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा तो यू आर गोना गेट अ डार्क कॉम्प्लेक्शन. यू सी, स्ट्रेस लेने से स्किन कलर डार्क होता है. दैट्स द बॉटम लाइन हियर. एंड नाउ यू नो द साइंस बिहाइंड इट के जो ACTH बनाने वाला DNA का रीजन है वही मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बनाता है, साथ साथ वो एंडोर्फिन भी बनाता है. Okay, right. In some animals, an intermediate lobe of the pituitary gland called the pars intermedia is highly developed. This lobe secretes especially large amount of melanocyte stimulating hormone, and well, now you understand what I'm talking about. ACTH. Achha, this is also the reason there are diseases. For example, if we're talking about Cushing disease, so Cushing disease mein there is more cortisol there, and by the same token, there is more melanocyte stimulating hormone. So dark skin is a feature of Cushing syndrome, and now you know the reason. Okay. ACTH, because it contains melanocyte stimulating hormone sequence, is about 1/38 as much melanocyte stimulating effect as well. ठीक है यार, क्योंकि एक ही जेनेटिक लोकाई से बन रहे हैं ना, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो भी एक्शन है वो थोड़ा बहुत ACTH भी परफॉर्म करता है, क्योंकि जेनेटिक एरियाज कंजर्व्ड है. राइट. अब ये क्या बोलते हो, ये पढ़ा दूं ये सारी चीजें. ये जो बॉक्सेस है ना यार, ये मैं फिजियोलॉजी में ज्यादातर चैप्टर्स में छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि पैथोलॉजी में डिटेल में कर रहे हैं और मेडिसिन में कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक तो ज्यादा डिटेल में लिखे हुए भी नहीं है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है. बट एनीवेज क्विकली कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं करा ही देता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल, एड्रिनल एंड्रोजेंस, इनका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, ये रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. सेवरल मॉडरेटली एक्टिव मेल, इस चैप्टर में हमने दो ही एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का जिक्र किया है. वन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड द अदर वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. एंड्रोजन की हमने बात ज्यादा नहीं की, ये रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में करेंगे. ठीक है. So several moderately active male sex hormones called adrenal androgens are continually secreted by the adrenal cortex, especially during the fetal life. We will talk about them later on in another separate chapter. Normally, the adrenal androgens have only weak effects in humans. It is possible that part of the early development of the male sex organs is controlled by these androgens. Okay, so ये बात पता होनी चाहिए आपको. Now, ऑब्वियसली ये पैथोलॉजी और मेडिसिन का टॉपिक है, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये डिजीजेस न सिर्फ ये कि दे आर वेरी कॉमन, बट ऑल्सो दे आर आस्क्ड वेरी 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 कॉमनली इन द एग्जाम्स. मैंने कोई 5-6 दफा वेरी वेरी कह दिया, और इसका रीजन है, देखो मैं आपको एक गारंटी दूं, कोई भी आपका प्रोफेशनल एग्जाम ऐसा नहीं होगा, USMLE, MRCP, FCPS, व्हाटएवर यू टॉक अबाउट, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें एडिसन डिजीज से क्वेश्चन ना हो, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं. सो इतना इंपॉर्टेंट है, ये अंदाजा कर लें. सो एड्रेनोकॉर्टिकल सिक्रेशन दो तरह की है. नंबर वन, हाइपो, ऐसे तो बहुत सारी तरहों की हैं, बट वन ऑफ देम इज हाइपो एड्रेनालिज्म.
हाइपो का मतलब है एड्रिनल के ग्लैंड्स कम होंगे, सो दिस इज एड्रिनल इनसफिशिएंसी, एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा, कम काम कर रहा है, इसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज. So Addison disease result from the inability of the adrenal cortex to produce sufficient adrenocortical hormones. तो अब इससे हमने दो हार्मोन्स पढ़े ना, एक हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड पढ़े, ये भी कम हो जाएंगे, एक हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पढ़े, ये भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इस डिजीज में पूरे का पूरा कॉर्टेक्स ही काम नहीं कर रहा ना. तो जब कॉर्टेक्स काम नहीं करेगा तो दोनों काम नहीं करेंगे, और फिर इनके इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए. नाउ it can be primary atrophy or some other diseases, but anyways what happens in Addison that the adrenal cortex is not working. In some cases, adrenal insufficiency is secondary to pituitary problem. So, in some cases, it is just unknown. Okay. अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एडिसन डिजीज में कॉर्टेक्स पूरा ही नहीं काम करेगा, तो इसका मतलब ये है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की भी डेफिशिएंसी होगी और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की भी डेफिशिएंसी होगी. मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, पोटेशियम निकल नहीं पाएगा. तो अब इससे रिलेटेड सारे आप सवाल समझ लें कि देयर विल बी हाइपरकैलीमिया होगा ना. क्यों होगा हाइपरकैलीमिया? क्योंकि पोटेशियम निकालना काम था मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, अब इनकी डेफिशिएंसी है तो बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाएगा. ये तमाम इसमें जो इफेक्ट्स लिखे हैं ना, वो अगर फिजियोलॉजी का लेक्चर मेरा आपने ठीक से सुना हुआ है तो ये आपको इजीली समझ में आएंगे. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी होगी तो दैट इज समथिंग प्रॉब्लम, बिकॉज द पर्सन इज नाउ नॉट एबल टू परफॉर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस, द पर्सन इज नॉट एबल टू हैंडल एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ठीक है. Melanin pigment is another characteristic of most of the people with Addison disease. Now here comes a very interesting story. देखें, बात यह है कि ये आपको ना पूरी स्टोरी समझनी पड़ेगी मेलानिन वाली, कि मेलानिन इज एन इम्पॉर्टेंट पिगमेंट जो आपकी स्किन को कलर देता है ना. मेरे अंदर ज्यादा मेलानिन है तो मेरा डार्क टोन होगा, कम मेलानिन है तो कम डार्क टोन होगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. मेलानिन बनता है बिकॉज ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है बिकॉज ऑफ एसीटीएच. एसीटीएच कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से. अब जरा स्टोरी सुनो. वो कहते हैं ना, वो गाना सुना, कहानी सुनो. अब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकलता है और ये कॉर्टिसोल जाके एसीटीएच को नेगेटिव फीडबैक से इनहिबिट करता है. अब हम पढ़ रहे हैं एडिसन डिजीज, इसमें कॉर्टिसोल तो निकलेगा नहीं. अच्छा, कॉर्टिसोल निकलेगा नहीं तो नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा तो ये एसीटीएच जो है ना बहुत ज्यादा बनेगा. ये एसीटीएच इतना ज्यादा बनेगा और कॉर्टेक्स आके बोलेगा, भाई खुदा के लिए यार कुछ मेहनत कर, कुछ हिम्मत कर और कॉर्टिसोल निकाल. और कॉर्टिसोल निकल नहीं रहा. कॉर्टिसोल कैसे निकलेगा? एडिसन डिजीज है. लेकिन ये जो एसीटीएच है ना, ये हाइपर हो रहा है, ये बहुत ज्यादा बन रहा है. जब जब एसीटीएच ज्यादा बनेगा तब तब एमएसएच ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये लिंक्ड है आपस में. अभी मैंने बताया आपको, ये एमएसएच ज्यादा बनेगा तो मेलानिन ज्यादा बनेगा, मेलानिन ज्यादा बनेगा तो पिगमेंटेशन ज्यादा होगी. यानी एडिसन डिजीज में देयर इज हाइपर pigmentation. So that's the bottom line effect. Okay, so there is hyperpigmentation, and that is also in the specific areas. So some areas such as around the nipples, around the lips, there is more melanin deposition. All right, and how do you treat them? An untreated person with total adrenal destruction will die very very soon. So you have to give them, synthetic mineralocorticoid and glucocorticoid. That's it. Now what is adrenal crisis? As noted earlier in this chapter, large quantities of glucocorticoids are occasionally secreted in response to different types of physical or mental stress. In a person with Addison disease, there is no stress handling, and this person will be in a serious trouble. और उसे हम कहते हैं adrenal crisis. Okay, no glucocorticoid, no mineralocorticoid. Problem. तो अब तक हम जितनी बात कर रहे थे, that was low working profile of adrenal cortex. Now there are situations when there is hyperadrenalism. So there is Cushing syndrome. More working of adrenal cortex. So hypersecretion, more secretion by the adrenal cortex causes complex cascade of hormone effects which are cumulatively known as Cushing syndrome. Many of the abnormalities of the cortisol, so cortisol ज़्यादा होगा, and hypercortisolism की वजह से there will be increased gluconeogenesis, diabetes and all those sort of things. और ये क्यों होगा? It can be because of adenoma in the anterior pituitary. Imagine ये वाली डायग्राम किधर है? Imagine this diagram. There is pituitary में adenoma. So where is pituitary? This is anterior pituitary. Suppose there is an adenoma, और इस adenoma से क्या रिलीज हो रहा है? ACTH दबा के रिलीज हो रहा है, तो दबा के cortisol रिलीज होगा, and that is hypercortisolism, यानी कि Cushing syndrome. So one cause can be adenoma in the pituitary. It can also be because of abnormal function of hypothalamus, which releases a lot of CRH. एक्टोपिक सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच, यानी कहीं और किसी कैंसर से, किसी कार्सिनोमा से एसीटीएच निकल रहा है और कॉर्टिसोल की सिक्रीशन को बढ़ा रहा है. व्हेन कुशिंग सिंड्रोम इज सेकेंडरी टू द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच बाय एंटीरियर पिट्यूटरी,
It is known as Cushing disease. Now that's a conflicting type of terminology. अक्सर बच्चे इसमें confuse होते हैं. Cushing syndrome अगर it is because of the increased ACTH by the anterior pituitary, then it is called Cushing. यानी अगर एडिनोमा है anterior pituitary का, in that scenario Cushing syndrome को आप Cushing disease कहते हैं. Excess ACTH secretion is most common cause of Cushing syndrome. Obviously, more ACTH, more cortisol, and administration of यहाँ पे ये टेस्ट बता रहे हैं ना, ये मैं अभी नहीं करा रहा यार, ये मेडिसिन का टॉपिक है प्योरली, अभी मजा ही नहीं आएगा, मैं 5 मिनट में करा के जान नहीं छुड़ाना चाहता. So just park it for my medicine lecture guys, and we will talk about. Actually मेरी एक वीडियो है भी, मेरी I have a video on adrenal function, तो वो जरा मैं लिंक दे देता हूँ, सर्च कहाँ करोगे, इतनी सारी वीडियोस अब हो गई हैं. राइट, सो कुशिंग सिंड्रोम में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज ग्लूकोज होगा, ज़ाहिर है इंक्रीज कोर्टिसोल है, सो यू हैव मोर ग्लूकोनियोजेनेसिस. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यू गेट डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, सो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है. द अबंडेंस ऑफ कोर्टिसोल, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन कुशिंग, it can increase blood glucose level, and we know this. All right, okay. The effect of glucocorticoid on protein catabolism, ये भी हम बात कर चुके हैं. होता बेसिकली ये है कि पेरिफेरल जो पार्ट्स हैं ना बॉडी के, उनसे प्रोटीन डिग्रेड होती है, एंड ऑल्सो प्रोटीन कंटेंट जो कि कम होता है, तो बॉडी में ये एब्डोमिनल साइड पे स्ट्राया डेवलप हो जाते हैं, कोलेजन कम होता है, सो दीज आर एब्डोमिनल स्ट्राया देयर. सो the effect overall of glucocorticoid on protein catabolism are profound in Cushing syndrome, and causing greatly decreased tissue protein almost everywhere in the body except liver. इस पे मैंने काफी टाइम स्पेंड किया समझाने में कि पूरी बॉडी में प्रोटीन कम होती है, लिवर में नहीं. Okay, the loss of protein from the muscle causes weakness, and it should make sense to you. The loss of protein in the lymphoid tissue have suppressed immune system, and thus these patients are very susceptible to infection. Even the protein collagen fibers in the subcutaneous tissue are diminished, and therefore you get purple stria in the abdominal region. And what would be the treatment? Treatment of the Cushing syndrome consists of removing the adrenal tumor if this is the cause, or if there is some other cause, then you treat it accordingly. But मैं treatment medicine के lectures में कराऊंगा, अभी नहीं. Now, what is primary aldosteronism? Occasionally a small tumor of zona glomerulosa. अभी ये जो हम बात कर रहे थे कुशिंग सिंड्रोम की, दैट इज पूरा कॉर्टेक्स जो है वो इनलार्ज होता है, एंड हाइपर सिक्रेशन होती है, प्राइमरीली ग्लूकोकॉर्टिकोइड की. इसी तरह एल्डोस्टेरोनिज्म जो कि कौन सिंड्रोम कहलाता है, इसमें एक हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और वो हार्मोन ऑब्वियसली नाम एल्डोस्टेरोनिज्म है, तो वो एल्डोस्टेरॉन ही होगा. तो अब एल्डोस्टेरॉन, ज्यादा सोडियम अंदर, ज्यादा वाटर अंदर, पफी मंदा, हाई ब्लड प्रेशर, and potassium bahar, hypokalemia. So there will be hypokalemia, increase in the extracellular volume, blood pressure बढ़ेगा, ये सारी चीजें. Just by knowing the physiology, you can understand the pathology and medicine. Then there is an adrenogenital syndrome. Occasionally an adrenocortical tumor secretes excessive quantities of androgen. मैं reproductive physiology में कराऊंगा, अभी नहीं. So that's all about this particular chapter. Endo to me is going fantastic. I'm thoroughly enjoying endocrinology lectures. I hope you are also enjoying it. Okay? Teachers आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, वो तो enjoy कर लेते हैं. स्टूडेंट का enjoy करना जरूरी है. ठीक है, चलो आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में. अपना ख्याल रखना.